भक्तविन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन नाथ की जय। श्री व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री गंगा देवी की जय। जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। संवेद भगविन की जय। युग धर्म हरे कृष्णा महामंत्र की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Shri Nand Utsav की जय। The holy appearance day of Shri Prabhupada की जय। Shri Prabhupada की जय। Lord Premanandi हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है श्रीमद् भागवतम। आज नंद उत्सव है। नंद महाराज आज अपने लाला की जन्म होने के उत्सव मनाएंगे और उसी दिन हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का जन्मदिन है, तो जिसको व्यास पूजा कहते हैं। और माता जी पढ़ते कल 12 कल टेक्स्ट 12 तो उससे पहले हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं 10वां स्कंद अध्याय 12 श्लोक 14 और इस अध्याय का शीर्षक है अगासुर वध। Welcome everyone to this morning Srimad Bhagavatam. We are reading from 10th Canto, chapter 12, text 14, the killing of the demon Agasur. Before that, we will read Srila Prabhupada Lilamrita. It is a very auspicious day today. The day after Janmashtami is called Nand Utsav. This is the day when Nand Maharaj celebrated the birth of his dear son, Lord Krishna. And this is the day when our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada bestowed His mercy upon all of us by coming down to this material world. So today is the Vyas Puja, you may say, of Srila Prabhupada. So on this note, we will begin today's class with Srila Prabhupada Lilamrita. Krishna consciousness was beginning in India and he wanted to travel with his disciple wherever there was an opportunity to preach. Just as he had walked in America, never settling comfortably in one place but always traveling, speaking about Krishna, meeting new people and offering them devotional service, so he would also walk in India. The train arrived at Kurukshetra station near here, said Prabhupada. Lord Krishna spoke Bhagavad Gita 5,000 years ago. They say it does not exist, a mythological place. It is a symbol of the field of the body and the senses, they say. It is an allegoric place, but here we are at the station. As he spoke, the sun was setting and a bright orange sky shone over the flat land. How can they say Kurukshetra is not a real place, he continued. Here it is before us, and it has been a historical place for a long, long time. When the train arrived at Amritsar station, members of the Vedanta Sammelan committee received Prabhupada and escorted him and his disciple to a park on the outskirts of the city. They showed him the large pandal. Is it on? Let me share. Okay.
So they showed him the large pandal in Niketan ashram and had erected for the Vedanta Sammelan and assigned him and his disciple their quarters, 3 small rooms. Prabhupada took one room, the 2 women the second room, and 4 of the men crowded into the third, leaving 3 men to sleep outdoors on cots. The first night in the northern climate was cold. Available bedding was meager, and none of the devotees had brought warm clothing. At 4 the next morning, the devotees congregated in Srila Prabhupada's room for Mangal Aarti and Kirtan before the deities of Radha and Krishna, the same deities who had been travelling with Prabhupada for the past 1.5 years. Despite the austere condition, the devotees felt fortunate to have such intimate contact with Prabhupada and Radha Krishna. Prabhupada played Mridanga, leading the chanting of the prayers to the spiritual master. Afterward, he had the pujari distribute to each devotee a bit of fruit and sweet meat that had been offered to the deities. It was still before sunrise and the room was chilly. As the devotees sat cuddled beneath a naked bulb, Prabhupada had them read aloud from Srimad Bhagavatam. That same morning, Prabhupada attended Vedanta Sammelan. There were thousands of people in the audience, and since most of them did not understand English, Prabhupada spoke in Hindi. His presentation pleased everyone, and the committee members honored him by making him president of the Vedanta Sammelan. So we'll dedicate our reading more into this a little bit longer. Although the program was scheduled only for several hours in the morning and evening, Prabhupada did not limit his preaching to these times. He preached every hour of the day. You can see how Srila Prabhupada was so dedicated, so devoted to the instruction of his spiritual master. And his preaching has so much impact that just by one hearing they made him the president of the Sammelan. And he just didn't preach only morning, evening. He just preached throughout every hour of the day. While he sat in his room, a constant stream of guests came to him, hundreds of pious Hindus seeking his blessing. Recognizing this vintage of Vedic culture, he pointed it out to his disciple. Just see, he said, how they treat a saintly person. Prabhupada also began receiving the usual flood of invitation to visit the homes of Hindu families. He accepted as many invitations as possible, more than possible it seemed to his disciples. Prabhupada moved quickly. When the cars were ready, he would come out of his room and go, leaving behind anyone who wasn't ready. After each engagement, he would get into his car and go directly to the next. So he will utilize his time so well. Didn't wait. He just finished, left also to go to the next. Late comers would sometimes find he had already left. They would then jump into bicycle rickshaws and try to catch him. A wrong direction or misstand might make them miss the next engagement, and when at last they would catch up, they would find Prabhupada coolly, gravely in the midst of a lecture on Bhagavad Gita or laughing and taking prasadam with his host. Every day brought at least half a dozen engagements. Come to our temple for darshan, come to our home for prasadam. And whenever Prabhupada would return to his ashram, he would find a long line of guests waiting to spend a few moments with him. None of the devotees could match Prabhupada's pace and enthusiasm. His energy seemed never to wane. That is at a very old age, at 70. Never seemed to be getting tired. For his disciple being invited insistently to take a full meal at half a dozen homes in one day was too much. Imagine, you have to have full course of meal, 6 homes at one time. They tempted to overeat and some of them got sick. So overeating will make you sick. Overeat. But Prabhupada knew how to handle the situation expertly.
He would fully satisfy each house, speak about Krishna conscious, hold kirtan, and take a little prasad and move on. One evening, in response to an invitation, Prabhupada visited the home of Baladev Indra Singh, a descendant of one of the ancient Punjab's ruling families. Although nearing 60, Mr. Singh was still a robust Punjabi Kshatriya, handsome, tall, and sporting a big black moustache. He showed Prabhupada and his disciple through his elegant home with its large portraits of ancestors, uniformed Kshatriyas with their helmets and swords. In the trophy room, which had many animal skins and stuffed heads mounted on the wall, Mr. Singh brought Prabhupada and his disciple before his prized trophy, a large tiger's head. Kshatriyas are very fond of hunting animals. Prabhupada approached closely. "You have killed this?" he asked. "Yes," Mr. Singh replied, and he described the details of the hunt. "The man-eater had killed many people in the nearby village," Mr. Singh explained. "So I went and shot it." Prabhupada's eyes widened and he turned to his disciple. "Oh, very nice." Later, Prabhupada sat in a chair and Mr. Singh sat before him on the floor. He said something was troubling him. An astrologer had told him that in a previous lifetime, thousands of years ago, he had fought in the battle of Kurukshetra, but on the side against Krishna. "That's not possible," Prabhupada said. "Everyone present at the battle of Kurukshetra was liberated. If you had actually been at the battle of Kurukshetra, you would not still be within this material world." Very important point. It is also mentioned that in Mahabharata, whoever fought in the battle of Kurukshetra, they will never take birth in this material world. They all got liberated, Swarga, Vapa, even back to Godhead. It all depends how they looked at Lord Krishna. They also Krishna, they also Arjuna. Mr. Singh wasn't certain whether to feel relieved or disappointed, but Prabhupada assured him, "That's all right, don't worry, now you are a devotee of Krishna." When Prabhupada asked Mr. Singh to become a life member of ISKCON, he agreed immediately. He confessed that when he had first invited Prabhupada and his disciple, he had actually been skeptical. But skeptical means he wasn't really sure what they are, who they are, didn't have much faith. But after being with Prabhupada for a few minutes, just few minutes, he said, all his doubts and suspicions had vanquished. He would be happy to become ISKCON's first life member in Amritsar. Although the devotees requested Prabhupada to take fewer engagements, he would not slow down. It was his disciple, he said, who were finding the pace difficult. One night after the 8th and the final engagement of the day, 8 programs in a day. Imagine that. Prabhupada returned to his home just a little before midnight. It's like we all had a midnight program yesterday. Prabhupada, for the devotees, the day had been exhausting and they were eager to get to bed as soon as possible. Noticing Prabhupada's light still on, one of them went to his windows. Prabhupada was sitting at his desk, leaning back against the wall, listening to a tape recording of one of the talks he had given that day. So Srila Prabhupada sacrificed his sleep, his everything for all of us. Let's see how compassionate he was. Returning after 8 programs in a day at midnight, he still is working on his preaching mission. Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada Holy Appearance Day ki jai, Srila Prabhupada Lila Metta ki jai. So let us read.
shlokas on the board. Text 14. Do you think you've read this? Drishtva? Because the थोड़ा वेद का दृष्ट का 12 कृष्णा रहा पर्यंत चीज ये ला 12th verse was Yat Pada Pumsa. That's 12. 12 and 13 was yesterday. I had that in it. Drishtava Arbakam Krishna Mukham Agasura. दृष्टवकं कृष्णा मुखम अगावर्ष सुरा Kamsa Anusishta Sa Baki Baka Anuja. कामासुन अनुसिस्ता सा बाकी बकन जा Aham tu me shodara nasha kritayor. आयन तुम्हें सदना नासा करता ताया Davo mama emam sabalam hanishye. दवरु ममसना साबालम हरिसे Dishtava arbakam krishna mukham agasura. दिष्टावर अरंबकम कृष्णा मुखम अगर सुरा Kamsa anushishta sa baki baka anuja. कमासुर सिस्ता साबा की बकम अनुजा Ayam tu me sodhara nasha kritayo. अगम तुम्हें साधना नासा करताय Tavo mama imam sabalam hanishi. दवो ममानाम साबालम हरिसये Please repeat. दृष्टावकम कृष्णा मुखम अगर सुरा Drishtarbakam Krishna mukham agasura. कमासुना सिस्ता साबा की बकन जुआ Kamsa anusishta sabaki baka anuja. आहम तुम्हें साधना नासा करतायो Ayam tu me sodhara nashkritayo. दवो ममानाम साबालम हरिसे Mama tayo mamayenam sabalam hanishe. दृष्टावाकं कृष्णामुखं अगसुरा Dishtava arbakam Krishna mukham agasura. कंसा अनुसिस्था सा बाकी बाका अनुय Kamsa anusishta sabaki baka anuj. आयं तुम्हें साधना नासा कृता तयं Ayutu me sodhara nashkritayor. मम हंसा परं हरिष्ये Dravyo mamaimam sa hari Drishtava. After seeing Arbakan, all the cowherd boys, Krishna Mukhan, कृष्ण headed by Krishna, Agasura, Agasura, the demon by the name Agasur, the demon by the name Agasura, comes Anusishta, sent by comes, Sa, he, Agasur, Baki, Baka, Anuja, the younger brother of Putna and Bakasur. पुतना तथा बकासुर का छोटा भाई I am this Krishna,
यहाँ श्री कृष्ण tu, indeed, निसंदेह में me, my, मेरा Sodhara Nashkrit, the killer of my brother and sister, मेरे भाई तथा बहन को का मानने वाला, Tayo, for my brother and sister, अपने भाई तथा बहन के लिए, Divyo, for those two, दोनों के लिए, Mama, my, Enam, मेरा Krishna, कृष्ण Sabalam, along with his assistants, the cowhead boys, उसके सहयोग वाल बालों समेत Ha Nishye, I जान shall से kill. जान से मारूंगा। Translation and purport. तात्पर्य अनुवाद by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Aghasur had been sent by Kams, was the younger brother of Putana and Bakasur. Therefore, when he came and saw Krishna at the head of all the cowherd boys, he thought, "This Krishna has killed my sister and brother, Putana and Bakasur. Therefore, in order to please them both, I shall kill this Krishna along with his assistants, the other cowherd boys." Text 15. Aghasur thought, if somehow or other I can make Krishna and his associates serve as the last offering of sesame and water for the departed souls of my brother and sister, then the inhabitants of Braj Bhumi, for whom these boys are life and soul, will automatically die. If there is no life, there is no need for the body. Consequently, when their sons are dead, naturally all the inhabitants of Braj will die. Text 16. After thus deciding that crooked Aghasur assumed the form of a huge python, as thick as a big mountain and as long as 8 miles. Having assumed this wonderful python's body, he spread his mouth like a big cave in the mountains and lay down on the road, expecting to swallow Krishna and his associates, the cowherd boys. Text 17. There is no purpose, so we're moving on till we get a purpose. His lower lip rested on the surface of the earth, and his upper lip was touching the clouds in the sky. The borders of his mouth resembled the sides of a big cave in a mountain, and the middle of his mouth was as dark as possible. His tongue resembled a broad traffic way. His breath was like a warm wind, and his eyes blazed like fire. Text 18. Upon seeing this demon's wonderful form, which resembled a great python, the boys thought that it must be a beautiful scenic spot of Vrindavan. Thereafter, they imagined it to be similar to the mouth of a great python. In other words, the boys, unafraid, thought that it was a statue made in the shape of a great python for the enjoyment of their pastimes. Purport. Some of the boys, upon seeing this wonderful phenomenon, thought that it was in fact a python, and they were fleeing from the spot. But others said, "Why are you fleeing? It is not possible that a python like this is staying here. This is a spot of beauty for spotting." This is what they imagined. So we'll stop here, get the Hindi, and then see if we have time for further. कंस द्वारा भेजा गया अधासुर पुतना तथा बकासुर का छोटा भाई था।
अथवा जब वह आया और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों के मुखिया है, तो उसने सोचा इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है, अथवा इन दोनों को तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को इसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। अदासुर ने सोचा यदि मैं किसी तरह कृष्ण तथा उनके संगियों को अपने भाई तथा बहन के निवगत आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम भेंट बना सकूंगा, तो ब्रजभूमि के सारे निवासी जिनके लिए ये बालक प्राणों के तुल्य है अपने आप मर जाएंगे। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर का क्या आवश्यकता। फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों के मरने पर व्रज के सारे निवासी स्वयं मर जाएंगे। यह निश्चय करने के बाद उस दुष्ट अदासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया, जो विशाल पर्वत की तरह मोटा तथा 8 मील तक लंबा था। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपना मुंह पर्वत की एक बड़ी गुफा के तुल्य फैला दिया और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संगी ग्वालबालों को निकलने जाने का आशा से लेट गया। उसका निश्चल ओठ पृथ्वी की तरह पर सतह पर था और ऊपरी ओठ आकाश के बादलों को छू रहा था। उसके मुख की बगले पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी और मुख का मध्यम भाग अत्यंत अंधकारमय था। उसकी जिह्वा चौड़ी मर्ग की तुल्य थी। उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी और उसकी आंखें आग की लपेटों जैसी जल रही थी। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालकों ने सोचा कि हो न हो यह वृंदावन का कोई रमणीय स्थल है। तत्पश्चात उन्होंने कल्पनाएं की कि यह विशाल अजगर के मुख के समान है। दूसरे शब्दों में निर्भरक होकर बालकों ने सोचा कि विशाल अजगर के रूप में यह मूर्ति उनके क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई गई है। तात्पर्य, इस अद्भुत दशा को देख कुछ बालकों ने सोचा कि यह सचमुच का अजगर है, अतः वे वहां से भागने जा रहे थे, किंतु अन्यों ने कहा, क्यों भाग रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई अजगर यहाँ रह सके। यह तो खेलने का रमणीय स्थल है। उन सब ने ऐसी ही कल्पना की। थैंक यू ओम ज्ञानतिमन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददान्ति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नशप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भागवतम उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैस्तिकी। हरे कृष्णा। एक बार फिर से सभी को श्रीनंद उत्सव शुभकामनाएं। श्री प्रभुपाद होली अपीयरेंस डे है आज, और इस पावन दिन के दिन हम श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद में अगासुर वध अगासुर के विषय में सुन रहे हैं। जैसे कल डॉक्टर शोभनिया माता जी ने बताया कि महाराज परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि एक बार जब भगवान श्री कृष्णा सुबह गैया चरा रहे थे, उस दिन जल आ गए और वहीं पे सुबह का नाश्ता करना चाहते थे। तो तब उस समय बोले वहाँ पे और खेल रहे थे, सब एक दूसरे के साथ हंस कर रहे थे, मेढक के रकम कूदे, बंदरों के रकम करे, सब आनंद विभोर थे। तो तभी वहाँ आता है एक असुर जिसका नाम है अगासुर। अगासुर वहाँ आते हैं और बताए अगासुर जिनका वध देवता इंतजार कर रहे थे। देवता तो नित्य दिन अमृत पीते हैं, परंतु ये असुर से वो बहुत ही भयभीत थे। उनके लिए वो मृत्यु के समान थे। देवताओं की कितना खतरनाक असुर है ये असुर को कोई प्रकार से किसी का दिव्य आनंद जो अनुभव कर रहे थे ग्वाले लोग, उसको देखा नहीं गया। वो ये बिल्कुल नहीं देख सकते कि कोई आनंद भिगोर है। तो कहने के अर्थ है कि असुर हम के अंदर है। जब हम कोई के देखेगा लो हमसे आगे बढ़ गए से, हमसे ज़्यादा सेवा करे हैं या हमसे संगे शुरू हो कर अब वो आगे बढ़ गए, उसके प्रमोशन मिल गया, अभी में मिला नहीं प्रमोशन, और हम ईर्ष्या करते हैं, तो ये अगसुर है। तो आज अगसुर के विषय में बात और आगे बता रहे हैं। अगसुर तो ये प्रकार के व्यक्ति थे यहाँ तात्पर्य में कश्यपोपाद जी बताए हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ये जो लीलाएं हैं, इसको असुर लोग नहीं आके रोके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जवाब दिया, वास्तव में वो रोक नहीं रहे थे, ये और एक दिव्य कार्य हो रहा था सबको आनंद देने के लिए। क्योंकि दोपहर के लंच होने से पहले वो आए थे। तो लंच टाइम आई, ये सब योग माया के कार्य है। उस समय भेजिस बोले कि वो लोग अपन खेल बंद करके अब लंच कर लेंगे, दोपहर के भोजन कर लेंगे, ये तो लोग खेलते रहे। तो इसी प्रकार से सभी अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे माँ सब अगर से कार्य करे बच्चे को आनंद देने के लिए, इसी तरह से तो ये ग्वाले मित्रों को कृष्ण को चले तो खेलते रहे। जैसे कल खेले के मौका मिल गया बच्चों को, तो टुवर्ड्स द एंड तक खेलते रहे और उनको रोकना बहुत कठिन है। बच्चों का स्वभाव है, रुकिए नहीं। कई प्रकार से अगर बैठा भी देंगे तो कोई और रकम से लोग अपन माइंड के खेलेंगे, कुछ करिए। तो इसी प्रकार से परंतु बताते हैं हर एक दिन एक असुर आए कि खेल रोक देवे उनके, अब भगवान असुरों को वध करते थे। इसके कारण इस दिव्य आनंद में वो, और जब भगवान ये कार्य करे तो उनके लिए एक और एक्टिविटी हो जाए, ये बदला भी एक खेल है, लोग खेले। तो इस तरह से ये अगसुर जो थे वो वास्तव में कंस के द्वारा भेजा गया था। कंस के ही असुरों को भेजे और हफ्ते भर हम लोग सुने किस किस प्रकार से
परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान को कौन मार सकता है? जो अजीता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, उसको कैसे मार? हमारा अज्ञानता है कि हम उस जले में भगवान के नहीं विश्वास का तब खत्म कर दिया। भगवान मृत्यु के रूप में तो आई। कई लोग बोले भगवान में नहीं शरणागत है, नहीं तो तुम भगवान के मार दिया, नहीं होता। यह अज्ञान बात करे, असुरिक भावना। और ये अगसुर भाई थे पूतना और बकासुर के। तो भगवान के जैसे देखी सुनी तुरंत उसके अपन भाई और बहन याद आएगी और कहने लगा कि इन्होंने ही मेरे भाई और बहन को मारा है, हम इसको इसके साथियों के साथ मारे। अभी तक जो असुर है वो लोग खाली भगवान श्री कृष्ण के मांगे बात करें। अगसुर केवल भगवान कृष्ण के नहीं, उसके ग्वाले मित्रों को भी मारे मारे। और यहाँ तक के बोले केवल ग्वाले मित्रों तक नहीं सोची सुनी। वो बोले कि ब्रज भूमि में बोले कि अगर हम कोई रकम से बोले इलों के सबके मार देगा तो बोले इलों तो ये सब ग्वाले लोग बच्चे लोग तो ब्रज के प्राण है, जीवन प्राण है। इन लोग ने भी दोनों में अपन शरीर त्याग दी। तो यानी कि पूरा ब्रज भूमि सारे भक्तों को मारना चाहते थे अगस्त। देखो कितना होलसेल किलिंग। सारे और असुर तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति ही आए, उसके वध करे के कष्ट तो दी दोनों के, बट जानलेवा हमला नहीं करी कि लोग खत्म कर देगा। अगस्त एकदम पूरा ईर्षा से भर के आए, इसके सबको नष्ट कर देगा, सबको खत्म कर देगा। और ये भी सोचे कि अगर इसको के हम खत्म करेगा तो हम अपन भाई बहन के जो आत्मा के लिए शांति दे देगा। बोले लोगों के तिल और जल चढ़ जी बोले तब चढ़ा देगा तिल और जल। अभी चढ़ाइस नहीं, जब तक अपन बोले बहन और भाई के हत्यारों और उनके सारे साथियों के मारे गए। इस प्रकार से वो क्रूर अगसुर ने एक अजगर के रूप धारण किया। और ये कोई साधारण अजगर नहीं, जैसे बड़ा पर्वत, और बोले उसका ऐसा रूप, मुंह इतना बड़ा खोलिस जैसे बड़ा से गुफा पर्वत पे है और नीचे सोईस। और मन में इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों को निगलेंगे। अजगर ने लीले खली रख रहे, फिर अपन शरीर के रेंगी सबके मारी अंदर, तो इस प्रकार से हम खावे अजगर जो होते हैं। तो फिर आगे बताते हैं कि उन्होंने उनका जो ओट था नीचेला वो धरती छुटारा, ऊपरला ओट के भाग जैसे बादल, आकाश में बादल छूटे थे, कितना ऊंचा। और उनका जो तब ऐसे खुला राजा, तो बोडा जो है वो लगे जैसे एक कोई पर्वत है, गुफा में पर्वत है, और हाँ गुफा में पर्वत है, और उनका मुख एकदम अंधेरा, कुछ देख नहीं सकते मुख, गुफा अंधेरा है। और जीवा जैसे निकाल दिस भारे अपन जीव जैसे रास्ता बन गई, रास्ता है ट्रैफिक वे, और श्वास जब निकले इसके जैसे गरम हवा हुए, और आग जैसे अग्नि जैसे निकले उसमें से, क्योंकि जिसके ईर्ष्या बहुत है उनके आग बड़े लाल थे, ईर्ष्या से खड़ा एकदम अग्नि, गुस्सा में रो देखो लाल हो जाए। तो इस प्रकार के असुरिक रूप देखकर अब ग्वाले लोग कौन चीज सोचे, अरे वृंदावन में इतना अच्छा गुफा कहाँ है, देखो गुफा एकदम जैसे अजगर के रूप में है। कोई ग्वाले बोले ये तो अजगर है, हम तो भागा। दूसरा लोग बोले अरे काहे डरता, कृष्णा जो उनके साथ है, जो डरने के क्या बात है, बोले इसमें चलो हम के खेले के लिए बन गए से। और उसके अंदर जाकर
देखो बच्चे लोग कुछ भी देखी तो जाए छुई या उसके भीतर हली, देखे मम्मी क्या है। इसी प्रकार से बोले वो चलो वहाँ पे खेलने के लिए। तो बताते हैं शास्त्र अनुसार कि ये अगासुर कौन है। हम भी ऐसे गुफा में फंस जाता है कभी कभी। ये अगासुर रूप जो है वास्तव में बताते हैं कि ये प्रतिनिधि रखे हैं क्रूअल्टी पर्सनैलिटी, क्रूर यानी कि कठोर। कभी कभी हम मुलायम है अंदर में, वचन कठोर है। कभी कभी वचन हमारा मुलायम है, अंदर एकदम कठोरता, मीठी मीठी बात करेगा बट अंदर एकदम क्रूर। और कभी कभी हम अंदर मुलायम है बट शब्दों से क्रूर हो जाता। तो बहुत ही सावधान रहो। ये असुर लोग कहीं बाहर से नहीं आई, हम के अंदर ही बैठा है मन और हृदय। तो इनको बहुत संभालना चाहिए। और यही कारणवश भगवान बारंबार आते हैं ये असुरों को हटाने के लिए। तो भगवान इस युग अवतार कलयुग में भी आए हैं इस असुरों को हटाने के लिए, हरिनाम संकीर्तन द्वारा। जो भगवान के नाम शुद्ध जपेंगे प्रेम श्रद्धा से बिना अपराध से, उनका सारा असुर चला जाए। और इस प्रकार से भगवान से प्रेम करी तो कोई के प्रति क्रूर नहीं रही, क्योंकि वो जाने इसके अंदर भी वही कृष्ण है जो हम जिसके भजता है पूजता है, उसको नहीं कष्ट दे। कोई जीव जंतु के लिए जो रात योनियों में जितने जीव जंतु है सबके पिता है श्री कृष्ण। अहम बीजा प्रदापिता। अब पिता खुश रहे कि हम एक बच्चे के साथ अच्छा से देता है और दूसरा बच्चे को मारता है, उसके काटता है, उसके कष्ट देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ बताते हैं कि अगासुर प्रतिनिधि रखते हैं ऐसे मन जो दूसरों के प्रति क्रूरता रखे, उसको मारे, उसको कष्ट दे, ईर्ष्या के कारण। ऐसे तो भक्त लोग नहीं करे। भक्त लोग तो एक चींटी के भी नहीं मांगे मारे, भक्त लोग किसी को मारना नहीं चाहते। परंतु भक्त के मन में अगर ऐसे भावना आई कि इसके नहीं सको बताए कोई कृष्ण कौन चीज, ये तो कुछ नहीं कर पाई, ये तो नहीं माला जप पाई, ये तो नहीं सेवा कर पाई, इसके नहीं सको, तो ये भी एक क्रूरता है। किसी को सोचते हम कि नहीं सके, इसके नहीं, इसके भगवान के नाम, तो ये अपराध भी क्रूरता के कारण मन में आए हैं। तो अगासुर बैठा है। तो कैसी अगासुर निकली? अथा श्री कृष्ण नामाभि सेवन मुखो जीवा। भगवान के अपन इस इंद्रियों से, इस मन से नहीं आप समझ पाओगे। तुम सोचता मैं इतना ढेर करता हूँ, जान गया कृष्णा तुम्हें। भगवान के जब तक हृदय में पवित्रता नहीं आई, ये क्रूरता नहीं जाए, तब तक भगवान को साक्षात हम देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर हमारी में अभी भी थोड़ा कलीपन है, हम इस्तेमाल करते सबको चीज लेते हैं, परंतु हमें उनसे प्रति कोई प्रेम नहीं है, कल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, नहीं उसके कुछ इन रिटर्न, तो ये भी अगासुर के जैसे मन है। ये असुर बैठा है। हमें अपने मन को, अपने हृदय को, अपने तन को पूर्ण तरह से भगवान को शरणगत करके और सभी जीवों के प्रति दया करना चाहिए। कि सब बताते हैं यहाँ, ये भक्ति चरु महाराज बोल रहे थे अगासुर के विषय में, समझाते हैं कि अगर हम किसी के हरि नाम नहीं देना मांगते, उसके पास हम बैठता है, हम उससे बात करता, उसके कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताता, या कृष्ण भक्ति के या जीवन कैसे सफल करो उसके बारे में नहीं डिस्कस करता, हम दुनियादारी शरीर के बारे में। कई लोग इतना भारी एक्सरसाइज योगा करे कौन सी के लिए? तंदुरुस्ती के लिए, शरीर के पुष्ट, ठीक ये आवश्यक है, परंतु यही नहीं जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
अच्छा शरीर मिल गया है मानव तन और हष्ट पुष्ट हो तो उसके भगवान के सेवा में लगाओ, ये लाभदायक रहे आपके जीवन के अंत में। नहीं तो फिर यही शरीर तो फिर यहाँ छूट जाए। कभी कभी इतना बलवान हुए कोई इतना हष्ट पुष्ट रहे का एक्सीडेंट में मर जाए, रास्ता क्रॉस करे कोई धक्का लग जाए, शरीर कोई काम करे। बट वही जगह जब ऐसे एक्सीडेंट आया रहे और जय नरसिंहा बुला ले छोटी बच्ची। सच्चा घटना है इस कलयुग का। साउथ अफ्रीका में छोटी बच्ची 5 साल की थी और अपने माता पिता के संग वहाँ पास में मंदिर जाती थी हमेशा। और जाकर जैसे यहाँ आएंगे श्री राधा दामोदर मंदिर में तो श्री प्रभुपाद के दर्शन के बाद, श्री गुरुदेव के दर्शन के बाद यहाँ नरसिंहदेव है और वही प्रकार से उस मंदिर में बिठा और उस सब टाइम दौड़ते बस नरसिंहदेव के लगे खड़ा दिखे, इतना आकर्षित थे नरसिंहदेव से। तो एक दिन अपने घर पर खेलती थी, उनके घर डबल स्टोरी के था और रास्ता के किनारे था, नीचे खेल रही थी बॉल और बॉल खेलते खेलते रास्ता में बॉल चला गया, जैसे होता है बच्चे लोग खेले। और पिताश्री सेकंड लेवल में पोच में बैठ के देखे हैं और रास्ता में चल रही और ये दौड़ती हुए रास्ता में जा रही बॉल लाने के लिए, तब तक उधर से बड़ा ट्रक एक आ गया। ओवरसीज में तो आप लोग देखे होंगे इतना भारी भारी ट्रक लोड है, इतना कैरी कर इतना भारी, ये चिल्ला इस जोर से उसके रोके बट वो दौड़ गए इस बॉल के पीछे। बच्चा लोग देखो इवन नदी भी जाए समुद्र भी जाए बॉल ले जाए तो बॉल जब भय लगे लोग भागे जाए बॉल के पीछे, डरे है ना, बॉल के लिए लोग फिर उसमें डूब भी जाए कभी। तो इस प्रकार से दौड़ के जाए इस बॉल ले, पिताश्री वहाँ कूद गए बच्ची के बचाने, वो तो गोड़ अपना तोड़ के वहीं गिर गए और बच्ची चली गई और तब तक ट्रक ऐसे पास हो के चल गई। जब ट्रक गए सब एकदम सोच आज हमारा बच्ची खलास खत्म हो। जब सबको निकल के देखी तो देखे बच्ची उस रास्ता के ऊपर गिरी बेहोश पड़ी। जोर दौड़ के सब लेके गए अस्पताल गए, वहाँ पिताश्री के तो ट्रीटमेंट में जब बेटी बेहोश है, सब रकम के टेस्ट करे, एक भी हड्डी नहीं टूटा, एक भी दिमाग पे नहीं कोई चोट है और बेहोश पड़ी। तब लोग फिर अब क्वेश्चन करें कि घटना बताओ कैसे कुछ हुआ, मुझे बतावे तो लोग बोले जो चीज तुम्हें बताता है कि ट्रक आए के ऐसे धक्का मारे उसमें से कोई एक चीज नहीं। बट लोग खाली बोले वो जब सब कपड़ा उतार के उसके चेक करा तो वो देखता है छाती में से कुछ जानवर स्टाइल जैसे कुछ नाखून खुरचान है। तो बोले कोई जानवर हमला हुए से इसके ये नहीं बोले वो कि सामने बोले पिताश्री बोले मैं सामने एकदम बड़ा ट्रक एकदम ऐसे 2-3 दिन बीत गए। धीरे धीरे सब टेस्ट डॉक्टर ने करे एकदम हैरान परेशान कि कुछ पता नहीं लगे काय कौन कारण बेहोश है। तब तक बेटी अपना आँख खोलती है और बोलती है पिताश्री जब मैं रास्ते में गई और जब ट्रक को देखा मैंने जोर से बोला जय नरसिंहा जय नरसिंहा। इसको नरसिंहदेव याद है और नरसिंहदेव ने मुझे गोद में उठाकर उस पार रास्ता में से फेंक दी। नरसिंहदेव जब पकड़ी तो उसके तो नाखून तो तब वो बताए तो तभी बोले कि जब घर से बाहर निकलो कहीं भी कुछ करो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दयाल। तो कोई प्रकार से कुछ भी हो कैसे भी स्थिति में हो नरसिंहदेव को पुकारोगे वो दौड़ा चला आएगा और सहायता करेगी। जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में देखा जाए जब वो मंदिर स्थापित करने लगी ना पाश्चात्य देश में भी, फिर अब इंडिया में आए गए से
अब खास करके मायापुर इंडिया में, जब मायापुर के जमीन, अभी हम पढ़ रहे थे ना, तमाम कृष्ण गोस्वामी श्री गुरुदेव के भेजिस की जा बोलो जमीन, मुस्लिम लोग के जमीन ना उनसे खरीदे, बट खरीद के बाद भी लोग आए के वहाँ पे इतना भारी उत्पात मचाए, सब भक्तों के मारे, और यहाँ तक कि बंदूक भी कितना चला। तो श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया कि हमें उग्र नरसिंहदेव का स्थापित करना पड़ेगा। तो तभी श्रील प्रभुपाद नरसिंहदेव का जो वहाँ उग्र नरसिंहदेव है मायापुर में, और सब मंदिरों में बताइए नरसिंहदेव का प्रार्थना शुरू करो एवरी डे, और हर आरती के बाद नरसिंह प्रार्थना होता है, और नरसिंहदेव का मूर्ति जैसे स्थापित हुई, और उग्र नरसिंह मतलब उग्र मतलब बहुत डरावनी, बहुत फियर्स, उग्र नरसिंह देव का जैसे इस मंदिर में आइस सब, तो कोई भी रकम के आपके जीवन में उत्पाद है, विघ्न हरता श्री नरसिंह देव को याद कीजिए, जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, और वो आकर आपका रक्षा करेंगे। तो ये बताते हैं यहाँ अगासुर ऐसे असुर थे जो इतना भारी अजगर के रूप धारण करीस, और केवल कृष्णा नहीं पर सबको नष्ट करे मांगे। तो ऐसे हम असुर को मत अपने हृदय में बैठाए, सबके प्रति दया करते हुए सबको भगवान के करीब ला। हरे कृष्णा। अब दर्शन का समय हो गया है, हम खड़े हो जाए। गद्राश्रम भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे। जय गिरि गोवर्धन,
गिरिराज गोवर्धननाथ की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। शील प्रपाद की जय। शीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदी। यशोमती नंदन यशोमती नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन काना। सोमती नंदन ब्रज जन रंजन गोकुल रंजन काना। गोपी पारन धन मदन मनोहर। गोपी पारन धन मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना। लिया दमन विधान। आमल हरि नाम में अभिलाषा। आमल हरि नाम में अभिलाषा। विपिन पुरांदर नवीन नगर बर। विपिन पुरांदर नवीन नगर बर। बंसी वदन सुवासा। बंसी वदन वासा। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन। नंद गोधन रखवाला। नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाल। सुंदर नंद गोपाल। जमुना तट चर गोपी वसन हर। जमुना तट चर गोपी वसन हर। रास रसिका कृपा मोया। रास रसिका कृपा मोया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नाटकर।
गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. 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 Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Shri Radha Damodar Jai Jai Shri Bhumita Bhagwan की जय, Srila Prabhupada की जय, Srila Gurudev की जय, Govind Hari Hari Bol. The lotus feet of our spiritual master is the only way by which we can attain pure devotional service. I bow to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opened my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates. By him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and the master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. Patita Pavan Srila Prabhupada ki jai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada.
आचार्य अश्रुत सत्य श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की Liberty founder आचार्य प्रभुपाद की The Holy Appearance Day of Srila Prabhupada की Srila Prabhupada Transcendental Guru Puj की Srila Prabhupada की Shri Guru Bind की Shri Guru Patra की Lord Premanandi Oh glorious Prasanna Oh glorious Prasanna Oh glorious Prasanna Oh glorious Guru Gauranga ki Lord Premanandi Give me help, give me strength, let me be as you are, without desires or aspirations. I offer you all respects for thus and man and the energy to know you correctly. Then by chanting the holy name in great ecstasy, all my offenses will cease. When will such mercy fall to this one, whose weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my blood. Shri Gurudev ki jai. Jai Jai Gurudev. Jai Jai Gurudev. Gurudev. Jai Shri Gurudev. Jai Jai Gurudev. 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 Jai Shri Gurudev. Jai Jai Gurudev. 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 Jai Shri Gurudev. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva. Shila Gurudeva. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva. Shila Gurudeva. Jai Gurudeva. Jai Gurudeva. Gurudeva. Shila Gurudeva. Gurudev. Kripa Bindu Diya. Gurudev, Kripa Bindu Diya, Korore Dase Dina Krishna Atvihina. Sakal Sahane Boltiya Korone Priya Hina. Sakal Sahane Boltiya Koro Nij Mani Priya Hina. Sakal Gurudev
दीना करो मोरे आत्मा शक्ति बुद्धिहीना शक्ति दीना करो मोरे आत्मा साथा। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जगत विचारे किछ नहीं पाए तुम्हारा समाधान योग्यता विचारे कुछ नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारा। कन्न न होए कंदिया कंदिया कान न रखी वो आरा करुणा न कोइले कन्या कन्हैया प्राण रखी बोहारा। गुरुदेव हमारा गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपादाचार्य अश्रोत सत्शिष्यमन माँ कृष्ण गोस्वामी कृष्ण गुरुदेव की जय। कृष्ण गुरुदेव ट्रांसेंडेंटल गुरु पूज की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री गुरु गोविंद की